welcome Miss Mahima Chaudhry here on stage to share her inspiring story here with us. Over to you, ma'am. Good afternoon. You must forgive me because it hasn't been very long. It's a very, very emotional time for me. And also, these are very happy tears. Devika ji just told us that it's been 20 years since she fought breast cancer, and I just feel so hopeful. And so these are very, very happy tears. I'm so, so happy that SBI started this because, to be frank, even now, I don't do a self-examination every month. I should be the first one to do it, but I don't do it. And I'm happy you've come up with this, and I just want every woman, like Dr. Neeta said, to take themselves seriously and make themselves feel important at least for 5 minutes in a month. We must all do that, including me. And I'm just so proud to be associated with this effort and this thoughtfulness. And what else can I say for all the people, all the women who are fighting breast cancer? Just to let you know that the treatment for breast cancer, because it is so common, is also very, very good. So you'll get through this and you will survive, and then you'll join the fleet of the survivors. So I wish you all the best in your treatment, and never think that it's not going to happen to you, because I think all of us are like that. I remember the day I was detected. I used to do yearly checkups. Those times I was really frightened, and I used to say, everything okay, doctor? Everything okay, doctor? But the year that I was detected, I had no fear. I was like, okay, so now should I go? She says, no, come back in here. I see a difference. So it's almost like Murphy's Law, when you're not expecting it is when it happens to you. So don't think कि इस महीने, last महीने तो किया था, इस महीने क्यों करूं? Because cancer cells grow rapidly, बहुत जल्दी वो grow करते हैं. तो last month आपने किया, तो इस month भी कीजिए. And ये जो hot water bag है ना, it's truly a hug of life, and take it as a gift. I'm going to learn it myself, because मुझे भी जब मैं self examination करती हूँ, मुझे सारे lumps, cancer lumps लगते हैं. So I just go back to the doctor and I say, मुझे समझ में नहीं आया, doctor आप देख लो. So this is such a wonderful thing to train us. And like Ravindra said, अगर लोग इससे, इस sensitive tips of the fingers से किताबें पढ़ सकते हैं, तो हम एक lump को समझना क्यों नहीं सीख सकते? Let's all do it. And yes, and let's spread this awareness with SBI. Thank you so much for having me do this campaign with you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Requesting you, ma'am, to stay back. And thank you so much for sharing your story. It's so inspiring, so motivating. I'm really touched and I'm speechless, really. Well, we'll definitely hear more on this. Requesting Ravindra sir to kindly join us here on stage, because we'll have a Q&A session. And any queries, we have both of them to address it. लोग एग्जामिन नहीं करना चाहते हैं, ताकि उनको लगता है कभी एग्जामिन कर लिए हमने और पता चल गया कि हमको कैंसर है. वो जो भय का माहौल है, उसको लेकर लोग जो जी रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा. सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर मदर. अभी भी मैं उनको हिम्मत देना चाहूँगी. एंड मेरी फ्रेंड्स खुद, मतलब जितना एजुकेशन मेरा है उतना है, उनका भी है. लेकिन जब मेरा डिटेक्शन हुआ, मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुम लोग चेकअप कराते हो? तो जैसे नहीं, हमने तो बहुत सालों से नहीं कराया. तो ऐसे अब करा लो. जैसे नहीं, डर लगता है. इट्स ओके, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं ऐसे ही ऊपर चली जाऊँ, मुझे आई डोंट वांट टू नो. तो ये आई थिंक मेंटालिटी है लोगों की. और लोगों को ये भी लगता है अगर मैंने चेकअप कराया और निकल गया तो क्या. पर अगर आपने चेकअप कराया और निकला और वो अर्ली स्टेज है, तो आप क्योर हो जाओगे.
ये मेन चीज़ है हमारे इस कैंपेन का कि कैंसर टुडे इज क्योरेबल, लेकिन अर्ली स्टेज पे. दैट इज़ द मैसेज. आज आप यही मैसेज लेके जाइए कि मोस्ट कैंसर्स टुडे हैव अ क्योर, 90% क्योर, लेकिन अर्ली स्टेज पे. तो आपको ध्यान करना, चेकअप कराना बहुत आवश्यक है. सर मेरा अगला सवाल आपसे है, इस तरह के कितने नंबर्स ऑफ बैग्स आपको लगता है लोगों तक आप पहुंचाने में कामयाब होंगे, और क्या टारगेट है और क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं, कितना अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगा इस कैंपेन के जरिए? और खासकर आपने जो महिमा जी को लिया है साथ में, वो खुद एक बहुत बड़ी फाइटर है, इससे इस कैंपेन का कितना फायदा होगा? मैं आपका क्वेश्चन 2-3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. पहला तो यू नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ महिमा जी ऑन द कैंपेन. आई थिंक वी कैन सी इन द रूम. ओके, सो दैट इज द इम्पैक्ट. नाउ हाउ फर्दर आप लोग इसको लेके जाओगे, दैट इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम आई थिंक बोथ ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू, दैट यू नो प्लीज हेल्प अस टेक दिस कॉन्वर्जेशन, ये बातचीत आगे, सो दैट ये जो टैबू अभी ये सब्जेक्ट पे है वो धीरे धीरे कम हो जाए. So this is the impact of Mahima in the campaign. Okay. Second question is, what is the number you are looking at? It also depends on the permissions we'll get. Okay. Yes, we have kept around, you know, if I'm not wrong, around 80,000, or what is the number? 80,000 is the number right now, you know, after a certain evaluation. But we are hoping that we get more requests than that. Okay. Right now we are still talking to a lot of gram panchayats, lot of other smaller cities also. If we get permission, obviously the numbers will go up. Second, depending on the media coverage we get on this, we are anticipating the number to go up. For example, my own calculation, looking at the room today, you know, I anticipate that my requirement will go up by 25 to 30%. You know, because the way I calculated, you know, the media presence to be there, basis that मुझे लगा 80-90 हज़ार बहुत रहेगा. But I am very happy to see the room full, okay, and the kind of response you guys are giving. Obviously, the number will go up. Last, we are also in talk with defense and police, okay, because we see now, you know, this section of profession, a lot of women joining them. So how can, you know, we as a brand or from the community do something for them? We are talking to them also. If that works out, obviously the numbers goes up again. So that's the whole thought process. Well, before we take the next question, kindly introduce yourself first and keep the question short, please. Thank you. The next, any more questions? Hi, Mahima, this is Pooja from The Week. Hi. Kudos to you for really pulling this through and surviving through the journey. Tell us about the most challenging moments that you encountered during your journey. You know, any 2-3 times when you really felt, I mean, that, you know, you felt like giving up, but you didn't. Yeah. I think it'll motivate all of us. I think they say, na, the treatment is worse than the disease. Chemo is a very, very difficult treatment to take, but you have to take it. So I think my chemos were very difficult for me to handle, and especially because physically आपके सारे बाल झड़ जाते हैं, because cancer cells fast growing हैं, तो आपके सारे fast growing cells मर जाते हैं, तो आपके बाल चले जाते हैं और एकदम से आप बीमार लगते हो. जैसे अगर किसी को और कोई दिक्कत है हार्ट की, उसकी आपको देखते ही नहीं लगेगा, बट कैंसर पेशेंट्स को आप समझ जाते हो कैंसर पेशेंट्स हैं. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मुझे उस तरह से देखे, क्योंकि मुझे समझ थी कि मेरा अर्ली डिटेक्शन है. मेरे डॉक्टर्स बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, ओ तुम्हारा बहुत जल्दी डिटेक्ट हुआ है, ये क्योर हो जाएगा. बट मेरी बच्ची छोटी है, तो आई डिडंट वांट हर टू थिंक कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी. तो आई थिंक वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि बच्चा आपको नहीं देखे और आप स्ट्रॉन्ग फील करें, और कीमो में आप लेटे रहते हो तो उनको लगता है ये तो बहुत बीमार हो गई मम्मी, नाउ शी इज़ गोइंग, शी इज़ लाइंग टू मी.
सो आई थिंक वो एक इमोशनली डिफिकल्ट टाइम था. एंड जैसे आप देख सकते हो, ये आपको रैटल कर देता है, ये जो आपका डिटेक्शन होता है. आप देख रहे हो अभी भी मैं रो रही हूँ एंड ऑल दैट. तो मैं सभी कैंसर पेशेंट्स को कहूँगी कि यस, कोई भी स्ट्रांग नहीं होता. मुझे भी लोग बोलते हैं मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रांग हूँ. और ज़रूरी नहीं है आप स्ट्रांग रहो, बस आप अवेयर रहो, एडुकेटेड रहो. और अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप कुछ करो, मतलब टेक एक्शन. और हर महीने एग्जामिनेशन करो, क्योंकि अगर होना ही है और चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं विमेन के हमारे हिंदुस्तान में और सभी जगह, तो जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका इलाज हो जाएगा. तो ये बार बार मैं रिटरेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है. हेलो. बाकी आप रोना चाहते हो रो, आपको दुख होगा, आप गिरोगे, ये सब रहेगा. आपको लगेगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, बट वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप ट्रीटमेंट कर लेते हो. और फिर आप जब मिलते हो, जैसे मैं आज देविका जी से मिली हूँ, वो बोलती है मैंने 20 इयर्स हो गए, 20 इयर्स बैक हुआ था. तो मुझे इतनी उम्मीद लेकर जा रही हूँ आज मैं कि यू नो आई डोंट हैव टू थिंक आई हैव अ शॉर्ट लाइफ. यू नो, बिकॉज हमें भी डर लगा रहता है, व्हाट इफ इट कम्स बैक, यू नो. मुझे क्या करना चाहिए. जैसे मैंने डॉक्टर नायर से पूछा कि यू नो इसके बाद मैं आपसे बहुत चिट-चैट करूँगी, बिकॉज मुझे बताना कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए. यू नो, मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं आता, मैं तो ये बॉटल से सीखूँगी, ये हग ऑफ लाइफ से सीखूँगी. तो आप लोग भी ज़रूर सीखिए, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. Hello. Good afternoon. I'm this Raj from Sansandwani Publication. It's for Mahima Chaudhry. I'd like to ask that what's the reason behind this breast cancer? आई रियली डोंट नो. जैसे कुछ कैंसर्स हैं, जैसे कोलन कैंसर या वगैरह, वो आपके डाइट के ऊपर हो सकता है. बट आई थिंक जितने, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जितने विमेन के कैंसर्स होते हैं, ओवेरियन, यूट्रस, ब्रेस्ट, ये सब आई थिंक हार्मोनल रिलेटेड होते हैं, थोड़े जेनेटिक होते हैं. मेरे घर में दूर दूर तक किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो हुआ ही नहीं, कोई भी कैंसर नहीं हुआ था. तो मुझे कैंसर का डर था ही नहीं. बट शायद कुछ जीन्स स्किप भी करते हैं जनरेशन्स को, तो मुझे नहीं पता ये क्या है. बट डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि यू नो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. हर डिजीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो भी इसी का रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज़ अच्छी लाइफस्टाइल अगर आपकी ना हुई, वेट ज़्यादा है, कचरा खाते हो, नींद नहीं होती आपकी ठीक से, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो इम्पैक्ट करती हैं, आपके चांसेस को रिड्यूस करती हैं. लेकिन आपके पास अगर जीन्स है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. जैसे मुझे आप पूछेंगे तो हिम्मत कहाँ से मिली. जैसे मैंने एंजेलिना जोली, जो हमारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बात की थी कि उनको जेनेटिकली एक जीन्स हैं जो उनकी मासी को भी था, मदर को भी था, और दोनों की डेथ उसी से हुई. तो उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट की मैस्टेक्टमी कराई कि आई डोंट वांट दिस. उन्होंने अपना यूट्रस, आई थिंक वो ओवरीज भी निकाल दी थी, बिकॉज उनके चांसेस बहुत हाई थे. मुझे वो डिसीजन, इट इम्पैक्टेड मी कि लुक एट दिस पर्सन, शी इज सो स्ट्रॉन्ग, शी इज टेकन अ कॉल. इसीलिए जब मैं डॉक्टर के पास बैठी थी एंड डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि शायद तुम्हें ये है और ये करना पड़ेगा, मैंने कहा डॉक्टर आप सब निकाल दो, दोनों ब्रेस्ट निकाल दो. यू नो, बिकॉज हमारे सामने इतने ब्रेव एग्जाम्पल्स दिखते हैं. तो आज मैं जब लोगों के सामने बात करती हूँ, आई नो क्या इम्पैक्ट होगा औरतों के ऊपर. अगर 10% औरतें भी इस बात को समझ लें जो मैं कह रही हूँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी.